Hey guys, welcome back to our channel. So let's actually start with Bank Nifty because the movement there is coming like really well, okay? And Nifty में अभी भी movement बाकी है. So we'll try to see if Monday को that movement comes or no. Now just before we start, first I would request you to hit the like button, and also I want feedback if these videos help you or not, okay? Because if you don't comment, we don't come to know if it really helps you or no. Cool. So we'll start with Bank Nifty. We'll look at the weekly, daily and then 15-minute time frames. I'll tell you like what I see. See, सबसे पहले तो मुझे क्या दिखता है बैंक निफ्टी में, ये ब्रेकआउट हो रहा है बराबर, ठीक है. सो नाउ दिस ब्रेकआउट इज हैपनिंग आफ्टर अ ब्रेकडाउन. तो आई वुड कंसिडर दिस ब्रेकआउट टू बी, आई थिंक इफ ब्रेकडाउन नहीं हुआ रहता उससे तो बहुत बेटर आई थिंक दिस विल बी, आई थिंक सो, ओके, as of now, because if I even draw a line in the inside candle broke down, now it's breaking out. So it's tried to trap some people or force some retailers into selling, and now it's moving when lot of people may not have their positions, okay? So I think it's very good for Bank Nifty. Basically all time high, consolidation and then a breakout. So मेरे को इसमें bearish कुछ दिख रहा नहीं है बैंक निफ्टी में as of now. So for next week what do I assume? बैंक निफ्टी के मंथली में आई कैन से कि बहुत कम चांसेस है कि दिस सपोर्ट जोन ऑफ बैंक निफ्टी, द बैंक निफ्टी अगेन कम्स बैक देयर. बहुत कम चांसेस है अभी. सो प्रोबेबिलिटी पॉइंट्स टुवर्ड्स अपसाइड ओनली. नाउ वेयर इज द डेंजर? द डेंजर विल हैपन बिलो द लास्ट वीक्स लो, ओके, बिकॉज दिस इज द ब्रेकआउट कैंडल. इफ द बायर्स आर स्ट्रॉन्ग देन प्रोबेबली दे शुड होल्ड द लास्ट वीक्स लो, करेक्ट, विच मीन्स ऑटोमेटिकली 55,400 के नीचे वी हैव टू पैनिक. Okay, if you're in buying mode, we have to panic. This is the only level I think इसके नीचे I think you should be scared in Bank Nifty. तब तक नहीं डरना चाहिए मेरे हिसाब से. 1000 पॉइंट है रूम आपके लिए. So weekly, what did we discuss? First thing we discussed a breakdown, then we discussed a breakout, which qualifies this as a better trade than only अगर consolidate होके breakout दिया था. ठीक है? Naturally, don't you agree? Let me know. I'll also tell you one very funny thing. So you recall this? Which day was it? I think so. This day. ये 7th अप्रैल था. You know what happened? That Trump का that news came. So then super bearish news के दिन पे that वो what trade was and all he is doing, वो super bearish day पे basically low लगता है, ठीक है? तो correct. Now yesterday you saw that fight Elon and Trump का, Tesla was 18% down वगैरह. तो it's actually very bad news कि the world's richest man is arguing so badly with the world's strongest man, I would say. बैंक निफ्टी फाउंड द परफेक्ट डे, ओके, कि कल ही मतलब मूवमेंट देना है हमको बुरे न्यूज के दिन पे. सो आई एम जस्ट लाइक अलर्टिंग यू गाइस कि हर एक बुरे दिन पे अगर अपमूव आता है तो देन आई थिंक दैट वो चलता है, मतलब बिकॉज हर एक रिटेलर का ब्रेन में लगता है कि उसको सेल करने वाले ट्रेड्स हो गए, या तो लॉन्ग नहीं जाने के लिए दे विल फाइंड रीजंस क्योंकि न्यूज उतना अच्छा नहीं है, ठीक है. सो कीप दिस इन माइंड. नाउ इफ यू लुक एट द डेली चार्ट बैंक निफ्टी में, मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कि लास्ट 3-4 दिन का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है ये. एडिशनली ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है ये. इसका मतलब क्या? 80H पे अगर स्टॉक आ गया है तो नीचे का भूल जाने का, सिंपल. नीचे का देखेंगे कब हम? 55,400 के नीचे. वीकली में ही वी डिस्कस्ड दैट व्हाई दिस लेवल, ओके. सो आई थिंक दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. 55,400 क्यों है? ये लास्ट 3-4 दिन के लोज भी वहां पे ही है, इसलिए. करेक्ट? यस और नो? नाउ व्हाट मे हैपन, मेरे हिसाब से 2 थिंग्स के होने के चांसेस आर वेरी हाई. देखो, या तो ये ऊपर जाएगा या तो ये कंसोलिडेट करेगा. ये लास्ट वीक के ये जो लास्ट डे का जो कैंडल है उसके इसमें कंसोलिडेट करेगा, ठीक है. So what would be a smart thing to do? I think the smart thing to do here would be to sell any OTM put option, okay, मेरे हिसाब से तो. And I'm this plan, basically I'm going to follow this plan. I'm just sharing that, okay, as always, the disclaimer. I don't intend for anyone to like use this analysis to take a trade, okay. So I think या तो ऊपर है या तो sideways है, तो नीचे का probability आना पूरा मेरे हिसाब से बहुत ही कम हो गया है. वो लोकेशन भी काफी अच्छी है क्योंकि, ठीक है. So we'll talk only bullishness in Bank Nifty. कुछ नहीं करना है और बात. एंड इफ वी आर बुलिश, सो वेयर आर वी गोइंग टू टेक बुलिश ट्रेड्स? सो वी हैव 2 levels, ओके. तो दिस जोन, आई विल मार्क द जोन फॉर यू. आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड इट. 55,900 से लेके 56,100 का जोन है जो ये. इफ बैंक निफ्टी कम्स डाउन and it forms a strong candle anywhere in this zone, I think then it's time to go long again, क्योंकि then it will basically come take a retest and then travel up. मेरे हिसाब से ये होना चाहिए. Now bearish कब हो गए हम? You see this support zone 1 2 3 4, it's always knocking at this level. So the level is 55,600. वीकली में हमको 55,400 मिला. डेली 15 मिनट में हमको 55,600 मिल रहा है, ठीक है. 55,600 के नीचे ही वी हैव टू लुक एट सम बेरिश ट्रेड. और इफ मार्केट गैप्स अप, अ वेरी बिग गैप अप होता है, देन क्या बहुत हाई चांसेस है जब भी मार्केट इट विल कम टू रीटेस्ट दिस जोन एंड देन ट्रैवल अप, ओके. तो 2 केसेस में वी कैन लुक फॉर अ बेरिश ट्रेड. वन ऑन अ वेरी बिग गैप अप जिसका होने का प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो, और द
if the bank nifty reverses and goes down below 55,600, दोनों का possibility is very low. ठीक है, just discussing and putting it out there. Now let's look at Nifty का weekly candle, what is it looking as? तो निफ्टी बेसिकली इनसाइड कैंडल्स बना रहा है 4 वीक से. नाउ वी नीड अ क्लोजिंग अबव दिस लास्ट 4 वीक्स हाई. दिस विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर निफ्टी. जो भी लॉन्ग लोग है, ठीक है, उनके लिए बहुत मस्त रहेगा. सो आई स्टिल नीड अ क्लोजिंग. हमको मिली नहीं है अब तक, सो वी कांट इफेक्टिवली से निफ्टी बहुत बुलिश हो गया है. ओके, मुझे लग रहा है प्रोबेबिलिटी ऊपर की है क्योंकि बैंक निफ्टी इज आल्सो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट नाउ. बट स्टिल व्हाट वी वांट वी डोंट हैव इट इन निफ्टी ऑन द वीकली टाइम फ्रेम. तो स्टिल साइडवेज कंसोलिडेशन जोन, ठीक है अब तक. सो नथिंग टू इन्फर फ्रॉम हियर. एट द मोस्ट अगर बात करने की है तो वी कैन से कि बुलिश एंगल्फिंग आ गया है, तो दिस इज अ बुलिश साइन. उसके अलावा वी कांट से एनीथिंग. एडिशनली इन द डेली चार्ट पे व्हाट कैन आई सी? आई कैन सी दिस बेरिश एंट्री, ठीक है, एंड देन द मार्केट क्लोजिंग अबव द बेरिश कैंडल्स हाई. दिस इटसेल्फ आल्सो टेल्स मी दैट मार्केट इज बुलिश. एटलीस्ट ये रेंज में. वैसे तो वी शुड नॉट टेक ट्रेड्स लॉजिकली ये रेंज में, ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, पर फिर भी अगर ये रेंज को प्ले करना है तो मुझे लग रहा है कि अब नीचे आने के चांस कम हो गया है बिकॉज ये बेरिश कैंडल के ऊपर वी हैव क्लोज्ड विद अ गुड कैंडल. तो निफ्टी में आई थिंक वेट फॉर वन मोर डे. वी नीड अ ब्रेकआउट. ओके, वंस दिस ब्रेकआउट कम्स आई थिंक मस्त ऊपर जाने के चांसेस विल बी वेरी वेरी हाई. देन बहुत अच्छा होएगा. यू गॉट एन अप मूव, देन कंसोलिडेशन एंड देन अ ब्रेकआउट अगेन. इट शुड वर्क लॉजिकली स्पीकिंग. तो लेट्स डिस्कस निफ्टी का बेरिश साइड फर्स्ट 15 मिनट्स में बिकॉज उसके चांसेस होने के बहुत कम है. तो लेट्स पुट दैट आउट ऑफ द वे फर्स्ट. सो 24,700 का जो लेवल है ये 24,700. व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस लेवल? बिकॉज कॉन्स्टेंटली 1, 2 and 3 तो सपोर्ट लेता है यहाँ से. ओके, ऑलवेज इट बाउंसेस, व्हिच मींस इसके नीचे अगर वी गेट अ क्लोजिंग तो ऑल दीज बायर्स विल बी ट्रैप्ड. बराबर, लॉजिकली स्पीकिंग, ठीक है. सो देन व्हाट विल यू डू? वील सेल कॉल्स अबव दिस स्विंग हाई. तो जब तक 24,700 के नीचे नहीं आता, सोचना भी नहीं है बेरिश मेरे हिसाब से तो निफ्टी में. क्लियर. एंड बुलिश भी बहुत कॉन्जर्वेटिवली खेलना है क्योंकि यहाँ पे अभी स्टिफ रेजिस्टेंस है सब जगह, ठीक है. सो 25,100 के ऊपर बेस्ट थिंग इज इफ वी गेट सम रेक्टेंगल सॉर्ट ऑफ थिंग हियर वन डे के लिए एंड देन वी ब्रेक आउट. दैट विल बी वे बेटर देन सीधा मंडे को ही निकले हम. बट इधर वे 25,100 के ऊपर इफ वी गेट अ स्ट्रॉन्ग कैंडल, ठीक है, दिस अगेन देन that opens the doors for an up move. So logically speaking then we should look for up वाले trades ही. Now just a reminder again कि ये range में है, ठीक है. So ज्यादा मतलब don't lose your senses in this range. Range के बाहर I think we can go aggressive but range में नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं. If Nifty comes down, I think this is a very good level to take a long trade. So this level is 24,850. तो 24,850 पे अगर आया और एक strong candle बनाया ये या तो एक W बनाया, ठीक है, then I think we can take a bullish trade again in Nifty. We can try. ठीक है, ट्राई कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं. ओके, सो निफ्टी में वी आर सीइंग इनसाइड कैंडल्स. वी डोंट हैव व्हाट वी वांट. बैंक निफ्टी में वी सॉ द लोअर रेंज ब्रेक एंड देन द अपर रेंज ब्रेक व्हिच मेक्स इट बुलिश. नाउ व्हाट एल्स? लेट्स सी सेंसेक्स. दिस इज द सेम थिंग एज निफ्टी. ओके, आई एम नॉट गोइंग ओवर दिस. इनसाइड कैंडल्स है, वी नीड अ 1 वीक कैंडल क्लोज एंड जस्ट बिकॉज बुलिश एंगल्फिंग है वी हैव टू लुक फॉर बुलिश ट्रेड्स वहां पे. लेट्स एक्चुअली लुक एट बिटकॉइन. बिटकॉइन द प्राइस एक्शन इज इट मेड अ फ्लैग, इट ब्रोक आउट. देन आई रिमेंबर वेरी वेल वी टोल्ड यू टू बुक समवेयर हियर एंड आई रिमेंबर टेलिंग यू दैट रीटेस्ट पे लेना है, ठीक है. सो यू हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी हियर. आई डोंट ट्रेड बिटकॉइन बट फॉर दोज हु डू आई थिंक यहाँ पे इट वाज अ वेरी गुड जोन टू टेक अ लॉन्ग ट्रेड. नाउ व्हाट डू वी हैव? वी हैव प्रीवियस रेजिस्टेंस पे बिटकॉइन स्टॉलिंग. तो अगर स्टॉल हो रहा है ये तो आई थिंक और 3-4 हफ्ते अगर स्टॉल हुआ तो बहुत अच्छा है ये, वरना आई वुडंट बी इंटरेस्टेड इमीडिएटली लॉन्ग जाने में इसमें. मेरे हिसाब से नहीं. अगर ये स्टॉल होता है 1 to 3 वीक्स और एंड देन अगर ऊपर की तरफ इफ इट ब्रेक्स आउट आई थिंक दिस विल अगेन बी अ वेरी गुड ट्रेड बिकॉज वी कैन थिंक ऑफ इट एज कि कंसोलिडेशन था, नीचे की तरफ इट ब्रोक आउट, इट ट्रैप्ड सम पीपल एंड देन इट्स गिविंग अ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी, ठीक है. सो देन वो लॉजिक से आई थिंक लॉन्ग प्ले कर सकते हैं इसमें. बट आई एज ऑलवेज आई एम टेलिंग यू रेजिस्टेंस जोन है, लोकेशन इज सेलिंग का लोकेशन है ये, बाइंग का लोकेशन नहीं है. So then I think pause is best here. So not doing anything in Bitcoin is I think it's smart here. Could be wrong. Let's see. Okay. And gold also. See gold. What did I'll show you the weekly chart. Gold. I remember we had told you somewhere here to go long, and you've gotten a big move उसके बाद. ठीक है. So after this big move, logically speaking, we can't expect it to जैसे 1 लाख पे है, we can't expect 1 लाख का अभी 1.2 लाख जाएगा quickly. ऐसे तो नहीं expect कर सकते क्योंकि see gold has gone up tremendously. उसको थोड़ा तो करेक्ट होना चाहिए, ऐसे कुछ तो करेक्शन आना चाहिए भाई इसमें, और फिर if it goes I can understand. पर I mean I'm not saying it can't go up. ठीक है, जा सकता है अभी भी ऊपर, बट वो रिस्क रिवॉर्ड मुझे लॉजिकल नहीं लग रहा है और मुझे प्रोबेबिलिटी भी हाई नहीं लग रही है वो कि यहाँ पे अगर कोई लॉन्ग जाएगा तो उसको बहुत ज्यादा अच्छा अप मूव कैप्चर करने की प्रोबेबिलिटी इज वेरी स्लिम एज पर मी. सो आई थिंक यू हैव टू अवॉइड दिस ऑल्सो फॉर नाउ. ठीक है, तो क्या करूं मैं अभी, मुझे अच्छे ट्रेड्स नहीं दिख रहे हैं. सिर्फ अच्छा ट्रेड मुझे बैंक निफ्टी में
दिख रहा है, दैट टू बिकॉज इससे नीचे की तरफ तोड़ के ऊपर की तरफ तोड़ रहा है, ठीक है। So do let us know if these videos are helpful for you. Do comment your views, and if this has been helpful, please let us know in the comment section, okay, and hit the like button. So let us know your questions, and I think I'm forgetting something, I don't know what, but I can't remember it, so I'll close this video now, and I'll see you next week, okay, bye bye.